بیت العلوم والے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جمعیت العلماء کی طرف بینر تلے اور نور العلوم والے مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم کے بینر تلے ایک پروگرام چلا رہے ہیں. ہمارے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ پہنچ جا رہی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ لوگ پروگرام کراتے ہیں. اب ہم لوگ ہیں دیہات میں، تو دیہات میں آدمی اسی وقت توجہ کرتا ہے کہ کوئی ریلی لے جائے، کوئی جب چندہ دے کوئی. اور ایسے واقعات دیہات میں کم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب گھروں میں عورتوں کا پروگرام کرایا جائے. جماعت کا ایک جو نظم ہے، مشورات کی جماعت لے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت لوگ نہیں جاتے، اوپر تمام فتوا لگاوت ہے. بہرور کا جانا بازار جا کے لیے کوئی مسئلہ پوچھتا ہی نہ ہے. جب وہاں جا کے لیے بہت زیادہ فتوا لگائی کرتے ہیں کہ وہاں دھرنا جائز ہے. میلہ بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں مجبور ہیں. اور وہاں جا کے لیے ارے کچھ ہی مسئلہ کہے جاتے ہو، نیک کام ہو تو کرو. ہر چیز میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. تو تمام طریقے سے ہمارے بزرگ لوگ باہر شہروں میں پروگرام چلاتے ہیں. ابھی صبح ایک نے فون کیا ہے کہ آپ کے چھیتر سے 3 لڑکیاں گئی ہیں. کہوں کا گئی ہے تو چاہے کہوں کا بھاگت بٹیا تمہارا علماء کا ہے ذمہ دار. جب تم ان کی تربیت ویسے کری ہو، بے لگام چھوڑے ہو، پیسہ مانگو تو کہا تھا 50 روپیہ نہ ہے. اور ہر گھر میں 3-4 موبائل ہیں. اب موبائل 250 روپیہ سے نیچے ریچارج نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہر مہینہ 250-300 روپیہ ریچارج کے لیے تمہیں اتنی پیسہ آ جاتا ہے. اور وہی بچوں کے تعلیم کے لیے 200 روپیہ نہ آتا ہے. کہا بھیا 200 روپیہ بہت مہنگا ہے، لیکن 250 سے نیچے کوئی ریچارج نہ ہے. 6-7 موبائل ہیں گھر میں. تو فاطمہ نام کی، عائشہ نام کی، زینب اور رقیہ اور حفصہ نام کی لڑکیاں ہمارے غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں. کالج بتائیں، اسکول بتائیں، دکھ بیماری بتائیں، بیٹھ رہی ان کے موٹر سائیکل پہ اور چلی گئی. اب ذمہ داری کی کیا ہے؟ علماء نگرانی کریں. ہر چیز میں گالی بھی علماء کھائیں اور علماء وہاں جا کے جو ہے ان کی نگرانی کریں. اب کہیں کہ اگر ایک پر پڑھاؤ تو کہا کہ یہ چھوٹی سوچ والے ہیں، یہ نیک سوچ والے ہیں. تو بھیا صاحب لوگ ہم کا ایک میٹنگ میں موقع دینا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک صاحب کی بارات گئے، اور کسی حد تک اپنے رشتہ داری میں بھی آتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیندار ہے، پورا گھر دیندار ہے. ہم نے 4 پہیہ سے اترا ہے تو کہیں مہربان کا بیٹھا ہے گئے. تو برقع والی 3 عورتیں ہم نے گاڑی پیچھے بیٹھ گئی. اور جوان لڑکی بغیر شادی شدہ کے وہ گرارہ پہنے رہا ہے، کہا تھا بورا اور بٹن آئے ہوتے ہیں. وہ بیٹھ گئے ہمارے بغل میں، ڈرائیور کے بغل میں. تو ہمارا تو سکھائے کو ہم کہیں یار اپنے سڑک پر چل پا یا کھڑا ایسے تو میرے دی ہے نا گاڑی. تو لوگ کہیں تو مولانا صاحب کہو کہ بیٹھا نہیں جاتا. تو اس سے ہم کہا بہنی تمہیں دوپٹہ نہ ہے، ہم اکیلا تو نہ بیٹھ گئی ہو. یہ جو ہمارا مورچہ ایک تم اوڑھ لو اور ہمارا جان بچائے گا، ورنہ وہاں سے جب ہم لوٹا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. یہ واقعہ میں نے وہاں سنایا، اور صرف اس لیے سنایا کہ گھر پورا دیندار ہے. اب دن شادی کے دن پتہ چلا تھا، شادی ہی کے دن لوگ باہر سے آتے ہیں اور گھر سے جاتے ہیں. تو اسی دن پتہ ہونا چاہیے. تو وہی دن دیکھو دن ایسا اظہار ہوا، اپنے انوچھا اڑائے کو کام لے کے گیا. کہنے والوں نے کہا کہ کیا کریں، ہم سب کو تھوڑی بیٹھا ہوا ہے. تو اب دین ہمارے بیڈ روم تک نہیں پہنچا ہے، دین ہمارے آنگن میں نہیں پہنچا ہے، اور دین ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں. کلکم رائی و کلکم مسئول. ہر بندہ اپنے گھر کا امیر ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا عالم ہے. مجلس لگتی ہے، ہم ذمہ دار ہیں. سب سے پہلے حکومت کی پوچھ تو بعد میں ہوگی. اللہ سب سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں ہم
से पूछेगा बीवी बताओ, बेटी बताओ, शादी से पहले शादी के बाद शौहर जाने। तो सबसे पहले हम सबको अपने घर की फिक्र करना चाहिए कि हमारे घर में औरतें कितनी दीनदार हैं। तकरीर में एक मुज़ाकरा है, मंगल के दिन मौलाना साहब दुआ ताबीज करते हैं, उधर से निकले रहा कहना मौलाना चाय पी लो, 3-4 लोग रहा चाय पी लगे, तब तक एक आदमी एक मुस्लिम लड़की को, नकाब वाली लड़की को बिठाकर उनके दरवाजे तक आया। तो मौलाना ने कहा कि इसको जानते हो? तो उनका हम कहा नहीं को। तो कहे कि ये जो लड़का आवा है पंडित हो और बगल ये पीछे जो है ये मुसलमान हो। उनको कहा कि लेकिन तबीज बनवावे लावा, कई बार हमने यहाँ चुका है, हम नाम बाप को नहीं पूछा, लेकिन वो मौलाना साहब कहा लगे कि ये बैठाए लेके आवत है। अब उनके घर के पास पड़ोसी होगा वो भाई, जब बगल में रहा था तो दोस्ती हुई जाती। तो अली कैसरगंज का एक आलिमा लड़की थी, कैसरगंज बाजार का एक आलिमा लड़की थी, वो किसी हमारे हिंदू भाई के साथ चली गई। तहकीक से पता ये चला कि वो जब का फोन लौटा डॉक्टर रहा है, जो लेके गया वो डॉक्टर था, नुक्कड़ वाला चौराहे पे बैठ रहा था। जब घर में कोई बीमारी होता है घर से फोन कर देता है कि भैया आइए इंजेक्शन लगाइए। तो भैया इतना आए कि वो अकेले भैया बना। अब भैया वो कोई नई लड़की रहा, आलिमा लड़की थी, लेकिन आलिम हो या जाहिल हो, कोई भी हो, नफ्स उसके अंदर होता जरूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद कहते हैं 13वां पारे की शुरुआत है, वमा उबर्रियु नफ्सी, 13वां पारा नाम वमा उबर्रियु नफ्सी, हमारा नफ्स भी बरी नहीं है। हजरत बशरी तकाजे को नबियों के शान से बहुत दूर की चीज है। ये बुराई नहीं कह सकते उनके करीब, वो मासूम होते हैं, अंबिया और रसूल मासूम होते हैं। इसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से कहते हैं वमा उबर्रियु नफ्सी, हमारा नफ्स इससे बरी नहीं है। दूसरी जगह उसी कुरान में कहा गया है कि हम अगर अल्लाह की निशानियों को न देखते तो खुदा न खास्ता कहीं लोग किसमें हो जाते, लौला अन रआ बुरहान रब्बी। तो ये चीज अगर मत है और एक औरत है, इसीलिए व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा गर्दिश में रहा एक मकूला, सच है या झूठ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन सच के बहुत करीब है। हजरत पीर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कोई मर्द किसी औरत को, लड़की को पढ़ा सकता है? तो हजरत ने फरमाया कि पढ़ाने वाला अगर हसन बसरी हो, हसन बसरी जो ताबई हैं, सहाबी के बाद उनका मकाम है, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरिया जैसी लड़की और औरत हो, वलायत में 1 नंबर की हो, और पढ़ाई जाने वाली किताब कुरान मजीद हो और जगह बैतुल्ला हो। कहाँ बैठे हो? जैसे ये गुनाह का इनकार कब हटा था अंदर घर में, तो बैतुल्ला से बढ़कर दुनिया में और अल्लाह का घर कोई है नहीं, फिर बैत मामूर है जन्नत में। तो पढ़ाई जगह जो हो वो बैतुल्ला की हो और पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, तब भी जायज नहीं, तब भी जायज नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी दौर में 7 साल 5 साल पर बच्चे बच्चियां सब समझ जाते हैं, ये अपने आज़ाए मखसूसा को पर्दा करना शुरू कर दे तो समझो ये समझदार हो गए। किसी जमाने में था 12-12 साल तक लोग नंगे घूमते थे बच्चे, उनको पता ही नहीं होता था पहने हैं कुछ नहीं पहने हैं। तो इसलिए अजीज दोस्तों, ये आज वहां तक सिर्फ नहीं है, वह कॉलेजों के बहाने जाते हैं, हम यहाँ बकरी है, मुर्गी है, जानवर है, घास है, खेत है, खलियान है, उनके पास अगर स्कूल कॉलेज पार्क गार्डन बहाना है तो हमारे पास खेत खलियान बकरी मुर्गी बहाना है। इसलिए सबसे ज्यादा निगाह दूसरों के घर में रखते हैं। फरमाया जब दूसरों के यहाँ तुम झांकने जाओगे तो अपनी जगह तो खाली मिल जाएगी, यहाँ कोई दूसरा बैठकर झांकेगा।
जब हम दूसरे के घर के जिम्मेदार बनेंगे तो हमारे घर का भी तो कोई जिम्मेदार बनेगा। तो बेहतर यह है कि हम खुद अपने घर के जिम्मेदार बने, दूसरों के गिरबान में बाद में झांके, पहले अपना झांके। हमारे दारुल देवबंद में जो चपरासी बैठता है इस पे कुर्सी पे गेट पे, अगर उसकी कुर्सी उठाकर कोई दफ्तर में पहुंचा दे तो उसको 100 रुपया दिया जाता है, ले लो पैसा जाओ, वही तनख्वाह से काट के दे देते। काहे कि वो जान जाते कि तुम कुर्सी से हटे हुई हो तभी तुम कुर्सी पर, तुम्हारी ड्यूटी कुर्सी पे बैठना था और कोई काम नहीं। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, खाना पकाने वाले खाना पकाते हैं, तुम्हारी ड्यूटी कुर्सी पे बैठने की थी। कुर्सी खाली मिली तभी तो ये लेकर आया है। अरे कैसे लाया है? तुमको ढकेल के तो लाया नहीं है। तो तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे तभी ये कुर्सी गायब है। तो अगर हमारे घर पे हादसा होता है तो जिम्मेदार हम हैं, वलमा जिम्मेदार नहीं है। वलमा तकरीर से समझाएंगे या शादी कहते हैं 15 साल में कर दो, सरकार पाबंदी लगाए है, लोग डेट बढ़ाकर शादी कर दो, शरीयत कहती है 9 साल में बालिग है। अब शादी की उम्र 15 साल 18 साल, शादी करोगे 35 साल। आदमी को भूख नहीं है, 2 पेट है अल्लाह ने दिए हैं, 2 भूख, एक बशरी तकाजे की भूख है और एक हमारी पेट की भूख है। तो पेट की भूख के लिए आदमी तड़प जाता है, चोरी से लाए, डकैती से लाए, मजदूरी से लाए, चाय पीने के वक्त चाय पिएगा, खाने के वक्त खाना खाएगा। तो क्या बशरी भूख नहीं है? इसकी भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा? हदीस के अंदर आता है अगर सल्ले बलूग को बेटा या बेटी पहुंच गए हैं और वालिदैन उनके बशरी तकाजे को मुकम्मल नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो बच्चे जुर्म कर लेते हैं तो उसके गुनहगार माँ बाप होंगे। तो क्यों नहीं करते हैं? जब उलमा कहते हैं वक्त पे शादी करो तो कहते नीच सोच के हैं, अभी डिग्री नहीं आई है, अभी बच्चे पैर पे खड़े नहीं हुए हैं और पैर पे खड़े होने से पहले पैर काट लेते हैं तो उलमा जिम्मेदार। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमारे शहरों में प्रोग्राम चलते हैं, हमारे देहातों में कम होते हैं। हम हैसियत अपने गांव के, हमारा गांव कहीं खाने काबों में नहीं बसा है। हमारे घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, भतीजियां हैं, भाजियां हैं, सारे लोग हैं, बेटे हैं, पोते हैं, तो है। शादी का जो उसूल शरीयत ने कहा है, दीन देख लो। लोग सबसे पहले माल देखते हैं, फरमाया सबसे पहले दीन देखो, दीन देखकर रिश्ता कर लो। सबसे आसान इस्लाम के अंदर तरीका निकाह है। एक हाँ कह दे, बीच में बैठकर हाँ नहीं कराने वाला इजाजत कबूल का नाम निकाह है, बस हो जाए। मस्जिद के अंदर कर लो, और मस्जिद के अंदर जो चीज होती है वो पायदार होती है। हमारे दरवाजे पे जब कोई मीटिंग होगी, कोई विधायक जी के दरवाजे पर कोई फैसला होगा, कोई नेता या थानेदार के सामने कोई फैसला होता है, तो वो कोशिश करता है कि जो हमारे दरवाजे पर पंचायत हुई है ये पंचायत मजबूत रहे, टूटने न पाए। वो कोशिश करता है कि इसको हम टूटने नहीं देंगे। तो जो अल्लाह के दरवाजे पे वायदा होगा, 2 खानदान जुड़ेंगे, तो परवरदिगार कहेगा कि मुझे अपने घर की लाज बचानी है, मुझे अपने द्वारे की लाज बचानी है। ये फैसला हमारे दरवाजे पे हुआ था, इसलिए हम इसको टूटने नहीं देंगे। छोटी मोटी बातें होंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अपने घर के लाज को बचाने के लिए अल्लाह उस रिश्ते को बचाता है। इसलिए अगर दीनी मजालिस लगती हैं, औरतों को तकरीर से नहीं रोका जा सकता है। ये भूख जो लगी है, हम लाख तकरीर करें, तुमने भूख लगा गाली मत दियो अपना मस्जिद के बाहर, ये भूख इतनी तेज लाती है तो खाली कुरान हदीस सुनाओ। तो कुरान हदीस की भूख अलग है और इसकी भूख अलग है। हम थोड़ी देर के लिए उनको 1 घंटे के लिए दीनदार बना सकते हैं, उसकी सोच बदल जाएगी, लेकिन जब वो चीज फिर नजर आई, तकरीर हमारी 1 घंटा की शैतान तो लगा है, कसम खरीद ताकीदी जुमले अल्लाह के सामने कहीं सा लाकूदन्ना, लाम ताकूद, ला नूने ताकीद बानून सकीना लगा हुआ है। ऐ अल्लाह तेरे नेक बंदों के रास्ते में जरूर भी जरूर बैठूंगा और जरूर भी जरूर बहकाऊंगा। और उस दिन से वो आज तक पीछे पड़ा है, तकरीर कितनी देर हुई है। तो इसलिए हम दीनी तालीम के साथ साथ हम खुद तरबियत करें। बेटियों की मोबाइल पकड़ो, जवान बेटियां अगर मोबाइल लिए हैं तो कभी ले लें,
ला देखी तेरा मैसेज अचानक मांगो, फोन रिकॉर्ड पे लगवाइयो, जरूरत शादी से पहले बेटी मोबाइल दियो भाई, कौन ऑफिसर बनी घूमत है कि किस लिए मोबाइल लिए? मगरिब बाद बच्चे से मोबाइल छोड़ लो, सुबह फजर बाद दे उठो, रात भर जागत है, दिन भर सोवत है? बच्चे जब तक अल्लाह की परवरिश में रहते हैं, बच्चों की आदत है सबसे मगरिब बाद सो जाते हैं और 3 बजे जाग जाते हैं, ये अल्लाह की परवरिश में है भी। और जब हमारी जानवर, कोई जानवर को किसी बंदे ने देखा मगरिब बाद चूमते हुए? मगरिब बाद सारे जानवर घोंसले के अंदर, और फजर बाद कोई नहीं मिला, जो अंडे पे है, जो बच्चे पे है, जो बीमार है वही मिला, बकिया सारे लोग बाहर है। ये उसूल अल्लाह ने बताया है, इज़ा कुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फजर की नमाज पढ़ो और जमीन में फैल जाओ, अल्लाह के फजल से रोजी तलाश करो। तो जानवर रोजी तलाश करने लगते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, घरे चाय गाय भी है तो चचा बाबा दादा के पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं? ये अपने अल्लाह के फजल से रोजी तलाश करते हैं, खाए के जरिए आपस में बने चाहे न बने। और हम लोग तो इसलिए हम अपने घर की निगरानी करें। बड़े बड़े बोरे के टाट जैसे घर पे पर्दा पड़ा है, लेकिन हाथ में मोबाइल है, तो ये समझो पर्दा भी ढकोसला है, पर्दा नहीं ढकोसला है। उनकी निगरानी कीजिए। जो बंदा अपने घर की हिफाजत करना जान जाएगा, इंशाअल्लाह हर आदमी अपने घर की हिफाजत कर ले, गांव महफूज हो जाएगा, मोहल्ला महफूज हो जाएगा और शहर महफूज हो जाएगा। हमको 4 घर दे दोगे तो हम नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें 2 ही हैं, एक वक्त में एक ही घर देखेंगी, 3 घर तो ऐसे रहेंगे ना। लेकिन 3 घर वाले अपने अपने घर की निगरानी करें तो इंशाअल्लाह 3 घर महफूज रहेंगे। और जब ज्यादा कोई मेहरबानी करने लगे बाहर वाला, जब ज्यादा कोई मेहरबानी करे बाहर वाला मेरे दोस्तों, तो उसकी गिरफ्त करें। खुश ना हो कि भैया रोज तरकारी ला के देते, भैया रोज लाए मिठाई दे, चाय पिए बहाने 5 रुपये चाय पिए हम नहीं लाए हैं और 250 की मिठाई लाए हैं, कहे नहीं कहे हैं? अरे 50 रुपये तेल फूकिस है, 5 रुपये चाय ये पिया हुआ है, 250 की मिठाई का लाओ हो। जरा के घर में पूछो ये अपने अम्मा को कितनी मिठाई खवाते हैं, ये अपने अब्बा को कितना देते हैं, ये अपने भाई को कितना पूछते हैं। अपने खानदान को पालने की हैसियत नहीं तुम्हारी, और दूसरों के घरों में तुम जो है मेहरबानियां करते फिरते हो। ये क्यों मेहरबानी करते हो? ये इब्लीस तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। कुरान करीम कहता है जिस घर में लोग जाएं आवाज में, हमारी माँ बहनें अगर घर में हैं तो इतनी तेज आवाज से बोले कि उसको कांटा लग जाए, मिर्ची लग जाए, अनाप शनाप पकते हुए बाहर आ जाए। और जब हमसे मुलाकात हो तो वो कहे यार तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बीवी बहुत गलत है, बदतमीज है यार, सही से बात नहीं करती है। कुरान कहता है ऐसी हमारी माँ बहनें जवाब दें, ताकि उसके दिल में अगर कोई मर्ज है तो वो मर्ज वही दूर हो जाए। और अगर मोहब्बत से बात किया और दरवाजा खोला, चाय पानी कराया, ये अखलाकी बात है। तू एक दिन में आज 1 बार दवा है, कल 10 बार जाएगा। फरमाया तुम इतना कड़क आवाज से बोलो कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वहां आने की हिम्मत न करे। हमारे जो घर आबाद हैं वो अपनों से बर्बाद हैं, हमारे घर जो बर्बाद है वो अपनों से बर्बाद है, दुश्मन थोड़ी आता है, अपने आते हैं। इसलिए कुरान ने कहा कि जो रिश्ते तुम्हारे गैर महरम हैं उनको गैर महरम समझा जाए, और जो महरम है अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि महरम रिश्तों से भी पर्दे का हुक्म देना चाहिए, ऐसा वक्त चल रहा है। इसलिए सिर्फ दीनदारी मस्जिदों को आबाद करना नहीं है, वो घर दीनदार नहीं माने जाते जिस घर की औरतें सही नहीं होती है। हमारे नमाज का असर हमारी बेटियों पे नहीं है, हमारी बीवियों पे नहीं है, तो बताओ हम दीनदार कहेगा है? उनका रिश्ता बंद हो जाएगा, उनकी गोद से हमारी नस्ल तैयार होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कहाँ से तैयार हुई? उनका कोई लड़का थोड़ी था, उनकी कोई बहू नहीं थी, उनकी नस्ल जो चली है उनकी बेटी से चली है। अगर बेटी दीनदार न होती तो हसन हुसैन होते। नूह अलैहिस्सलाम के बेटा हुसैन बना, बोलो
نہیں بنانا. تو اس لیے ہم اگر عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، تو دروازے تک نہ رہیں، محبت کے ساتھ اپنے گھر پہ بھی ویسے رہیں. کوشش کرتے ہیں ہم بھی، سارے لوگ کوشش کریں اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری خود بندہ لے لے. اور جیسے پڑھانے والا جب آتا ہے پڑھاتا ہے، کوئی غلط چیز استعمال کرتا ہے تو وہ گرفت کر لیتا ہے. کسی کو کام پہ آپ بلاؤ گے، اس کے کام پہ نگاہ رکھو گے، برائی کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک اسی نیت سے اپنے بچوں کی نگاہ رکھو. زیادہ جاسوسی کرو گے زیادہ بگڑے گا. جاسوسی نہیں کرنا ہے، باپ ہونے کی فریضے کو ادا کرنا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر لینا ہے. 2 گھنٹہ کس سے بات کرو، ذرا فون لاؤ ان کو. کون ہے تمہارا دوست؟ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ لڑکی ہے اور اپنی برادری کی ہے، چاہے جو مسلمان ہے چاہے جو ہے، پٹ سے کا نکاح کر، چاہے جو برادری کو نکاح کر. اب کوئی لڑکی بات کرت ہے، ہمارا لڑکا ہے تو اس کے خاندان سے بات کر لو اگر اپنی ہی برادری کی ہے. اب غیروں کو نہ چھیڑا جائے. ایک گھر کی بیٹی لاؤ کہ پورا کام پھونکا جائے گا. اب بچا کچھ نہیں پاؤ گے. نہ اتنی دینداری مضبوط ہے کہ جبریل بچانے آئے اور نہ سیاست اتنی مضبوط ہے کہ سرکار بچائے گی. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو دنیا میں دیکھ رہے ہو. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ سب سے زیادہ فرمایا من عرف نفسه عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا. ایک انگلی اٹھاؤ 4 آٹومیٹک اپنی طرف اٹھ جاتے ہیں. کہ حق تو یہ ہے کہ تو اپنی طرف اٹھائے، اٹھاؤ نا. ایکا کو اٹھاو نا، جیسے ایک اٹھائیو جیسے 3 اپنی طرف چلی آؤ، خود بخود چلی آؤ. تو ہم اپنا گھر اپنے ہاتھ میں لیں گے. اپنی بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجی ہیں، بہنیں ہیں، جن سے رشتہ ہے ان سے جو ہے رشتہ نہیں ہے تو رشتہ جوڑ بھی لیا جائے. تو کوشش یہ کیا جائے تاکہ علماء اس کے ذمہ دار زیادہ نہ بنے. بیچارے سب سے مظلوم کو مولوی کچھ بھی اور قاری مولانا ذمہ دار. ہم اپنے بھائی گئے تھے، بڑے بڑے علماء کا کہتے بہت گالی کھاتے ہیں، میرے بزرگ بہت گالی کھاتے. جماعت والے گئے، کچھ حرکت ہوئی گئی تو لوگ مرکز والے گالی کھاتے ہیں. اور ان کا پتہ ہی نہیں کہاں ٹہلت ہے، لیکن گالی وہی کھاتے ہیں. اس لیے کہ جڑ وہی سے ہے. خیر کا کام کوئی بولت رہا ہے. کسی کی بیٹی اگر تہجد گزار ہے تو ہے ہمت کوئی جو سڑک پر بیٹھ کے بتاؤ کہ یار ان کے گھر رشتہ پہلے ان کی لڑکی تہجد پڑھتا ہے. لیکن بکری ہاتھ میں کہیں گرنت کھیت میں گئی ہے تو تم بکری نہ بتائیو، لڑکے کا بتائیو، کیونکہ لڑکے بھی گرنت سے نکل رہا ہے، ان کی لڑکی بھی وہی سے نکل رہا ہے. تم ابلیس ہو کہ انسان ہو. کوئی کا رشتہ آوت ہے فالتو کے جو ہے. فرمایا جب تک سرمے دانی کے اندر سلائی نہ دیکھ لو، حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا تب تک زبان مت کھولو. اگر کھولنا ہے تو کہو بِأَرْبَعِ شَهَادَاتٍ، 4 گواہ لے کر آؤ کہ اس نے گناہ کیا ہے. 4 لوگ کہیں نظر تو بھی آئی نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ جرم کرتے دیکھا ہے، تو مانا جائے گا. اگر ایک آدمی کہا دے تو فرمایا اس کو کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَةً أَبَدًا، قرآن کہتا ہے اس کی اچھی اور بری گواہی اس کی موت تک، قیامت تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ جھوٹ بولا ہے. قرآن بچانا چاہتا ہے. اب کہتی ہم فالتو کی بدوا کوئی سے ہے، قانون بلانے سے بدوا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ پکڑ کے قسم کھائی ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم آباد ہوگی، اس کی وجہ سے جہنم آباد ہوگی. لوگوں کی آپ چھپر چڑھانا نہیں جانتے ہو، اسے اتارنا جانتے ہو. آج گاؤں گاؤں میں ناسور پھیلا پڑا ہوا ہے، پڑوسی بہکایا مت ہے. ادھر 3 دن رشتے والے آئے، 3 دن وہ آئے، چوتھے دن سے وہ غائب ہے. پتہ چلا کیا گاؤں کا کوئی مل گیا تھا اس کو. ارے مل گیا تھا تو اللہ بندے ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. فرمایا جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. المسلم لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. لا یحل الکذب الا فی ثلاث، 3 جگہ جھوٹ جائز ہے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. جوڑنا اللہ کی صفت ہے. ذرا سی عادت کے اولاد وہ خطا نسیان سے مرکب ہو سکتا ہے. اسی دنیا میں آندیاں چلتی ہیں، ہوائیں لگ گئی ہوں گی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی زندگی کو اجاڑ دیا جائے.
अगर आज हमारा घर उजाड़ोगे तो इंशाअल्लाह कल तुम्हारा भी घर उजड़ेगा। ये हवाएं जब पलटेंगी तो तुम्हारा छप्पर महफूज नहीं रहेगा। हमारी बेटी नहीं है क्या हमारी भतीजी भी नहीं है? हमारी भतीजी नहीं है तो क्या हमारी भांजी भी नहीं है? हमारे रिश्ते में औरत नाम का कोई है ही नहीं क्या? किसी पे आएगा तब उनको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए किसी को देखकर हंसा न जाए, उसको तनाव में समझाया जाए। रिश्ते आए तो पड़ोसी मिलकर तारीफ करें, खूब तारीफ के पुल बात सवाब है, और उसका घर बसा दो, पड़ोसी भी खुश हो जाएगा। आग लगेगी तो पड़ोसी का पहला लोटा पानी का आएगा। ये जो 10 किलोमीटर वाले हैं ये तुमको जब तक आएंगे तब तक तुम्हारे नस्लों की खाक बन जाएगी। तो अगर पड़ोसियों को खुश करना चाहते हो तो पड़ोसियों को भी खुशी दो। अगर उनको सताओगे और फिर ये उम्मीद रखो कि हमारे आगजनी में पानी लाएंगे तो पानी में एक खाक तुम्हारे मुंह में डालेंगे। ये भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। इसलिए दोस्तों ये सबसे बड़ी दीनदारी है, अपने आप को अपने से जोड़ना। अल्लाह जुड़ेगा जब अपने आप हमसे जुड़ेंगे। इसलिए अल्लाह के घरों की आबादी के साथ साथ अपने घरों की भी आबादी की फिक्र कीजिए। जमात की तरतीब बने, औरतों को जमात ले जाओ, इज्तिमा होते हैं वहाँ भी सुनाओ, और सुनाने के बाद 25 साल की बिटिया हो गई तो खाली जोड़ ही ना सुनाओ, और जोड़ से उसकी जिंदगी नहीं कटेगी। ये तो इबादत वाली जिंदगी है। रिश्ता तलाश करो, उसका रिश्ता कर दो कहीं, वरना लाख उसको दीनदार बनाओ, बहक जाएगी, शैतान उसके पीछे लग जाएगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें आप हज़रात को अमल की तौफीक दे। वो हमारा ही